हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 11 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इंडिया लॉन्च्ड इन द ईस्टर्न सेक्टर फ्रॉम 8 नवंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उस त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसे भारत ने 8 नवंबर से पूर्वी क्षेत्र में शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं सूर्य प्रहार, पूर्वी प्रहार, ईस्टर्न शील्ड या फिर शक्ति प्रहार। यहाँ पर आपको उस त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम बताना है जो कि हाल ही में भारत ने पूर्वी क्षेत्रों में शुरू किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रहार। आप देख सकते हैं, India has launched a major tri-service military exercise named Purvi Prahar on 8th of November 2024 in the eastern sector, following the disengagement between India and Chinese forces in eastern Ladakh. So the exercise will involve the Army, Navy and Air Force showcasing their combat readiness and operational synergy. The Indian Army will deploy infantry combat units, artillery guns, light combat helicopters, and unmanned aerial vehicles. The Indian Air Force will participate with its fleet of Sukhoi 30 and Rafale fighters, C-130J transport aircraft, and various other helicopters. Air Force bases in Kolkata, Hashimara, Panagarh, and Kalaikunda will be activated. So the Indian Navy's elite Marcos commandos will also take part in the exercise. और इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्ट्रेंथन इंडियाज ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड डिफेंस पोस्चर इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो आप ध्यान रखेंगे, पूर्वी प्रहार जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has proposed a ban on social media for people under the age of 16 as announced by the Prime Minister Anthony Albanese? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने घोषणा की है। आपको बताना है कि ये प्रस्ताव किस देश ने शुरू किया है। आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं, Prime Minister Anthony Albanese announced that the Australian government will introduce legislation to ban social media use for individuals under 16 years of age. So the new law will be introduced in Parliament within the year and it will take effect 12 months after ratification by lawmakers. The responsibility will fall on social media platforms to prove they are taking reasonable steps to prevent minors under 16 from accessing their services. So this proposal aims to protect young people from the risks and harms associated with the social media such as cyberbullying, addiction and exposure to inappropriate content. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization released the third edition of the World Solar Report? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन ने विश्व सौर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम,
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट ये जारी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। आप देख सकते हैं third edition of the World Solar Report series was launched at the 7th Assembly of the International Solar Alliance। और इस दौरान 4 रिपोर्ट्स लॉन्च की गई हैं जिनमें शामिल हैं वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एंड ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। So these reports focus on global solar growth, investment trends, technological advancements, and Africa's green hydrogen potential, highlighting the global shift towards sustainable energy. So World Solar Report 2023 emphasizes the critical role of solar energy in advancing sustainable energy solutions, offering key insights into industry evolution। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो आपको पता है कि इसको फॉर्म किया गया था 2015 और इसमें मोर देन 120 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian university is the highest ranked in the 2025 Quacquarelli-Simons Asia Rankings? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय 2025 के क्वाक्वरेली साइमंड्स एशिया रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सो ये यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। आप देख सकते हैं The QS Asia 2025 rankings have listed 161 Indian universities among 984 institutions across Asia, showcasing strong Indian representation. So, IIT Delhi emerged as the highest ranked Indian university, positioned at 44th in the Asia. So 6 Indian institutions are in the top 100, including IIT Bombay at 48th, IIT Madras at 56th, demonstrating India's academic strength. So top जो इंडिया की 10 यूनिवर्सिटीज हैं QS एशिया 2025 की रैंकिंग्स में उनकी बात करें तो IIT दिल्ली की 44th रैंक है, IIT बॉम्बे 48th, IIT मद्रास 56, IIT खड़गपुर 60th, Indian Institute of Science Bengaluru 62, IIT Kanpur 67, University of Delhi 81, IIT Guwahati इसका रैंक है 104, देन IIT रुड़की 108 एंड 10th प्लेस पर जो टॉप 10 की बात करें उसमें 10th पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसकी ओवरऑल रैंक है 110। आप ध्यान रखेंगे टॉप 50 में केवल 2 यूनिवर्सिटीज हैं IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Asian Development Bank's governance and membership, consider the following statements। यहाँ पर एशियाई विकास बैंक के प्रशासन और सदस्यता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The People's Republic of China is the largest shareholder in the ADB. Second, membership is exclusively available to countries within the Asia-Pacific region, emphasizing regional representation. And third, the ADB's establishment and governance structure were inspired by the World Bank model, focusing on a weighted voting system. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है
आपको बताना है एशियाई विकास बैंक के प्रशासन और उसकी सदस्यता से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक टुडे साइंड अ $200 million loan to help and upgrade water supply, sanitation, urban mobility, and other urban services in the state of Uttarakhand. Japan and the United States remains the largest shareholders with a 15.6% each, not China. इसलिए आपके वहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो आप ध्यान रखेंगे एडीबी में जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंट्रीज हैं वो हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। And ADB includes non-regional members not limited to Asia Pacific countries. सो एडीबी की बात करें तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान समय में इसमें 68 मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। यहां पर भारतीय अंतरिक्ष संघ के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ISPA is a governmental initiative created under the Department of Space to regulate private sector activities in India's space industry. And second, it operates as an independent organization but collaborates closely with the government of India on space-related policies and initiatives. And third, ISPA aims to foster a globally competitive space ecosystem in India by encouraging both domestic and foreign investment. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं थर्ड इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव was held in New Delhi and it was organized by the Indian Space Association, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है इंगेज्ड इन कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। सो पॉलिसी में इसके रोल की बात करें तो इट वर्क्स टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस फॉर स्पेस स्टार्टअप्स एंड इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इट एक्टिवली प्रमोट्स पार्टनरशिप टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। सो यहां पर आपने देखा इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।